السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ایمان اور یقین پر ہے۔ فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ تو گلی گلی سے آواز آ رہی ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بھابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔ اور مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے، لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو پیغمبروں نے بتائی ہیں، جو آسمان سے نازل ہوئی ہیں، بلکہ اپنی تعلیمات کے ساتھ کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ سب سے بڑا بابا وہ جس نے 1000 سال کے بابوں کی غلطی نکال دی، یعنی وہ جو کہتا ہے فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ تو گلی گلی سے آواز آ رہی ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بھابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اور مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے، لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو پیغمبروں نے بتائی ہیں، جو آسمان سے نازل ہوئی ہیں، بلکہ اپنی تعلیمات کے ساتھ۔ دین تو سٹارٹ ہی رسول اللہ سے ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بابے نہیں ہوتے۔ ہاں وہ بابے جو رسول اللہ کے وفادار ہیں، یعنی امام بخاری امام مسلم، وہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بتاتے ہیں، اپنی نہیں۔ ان کے بابے غدار ہیں، وہ اپنی تعلیمات بتاتے ہیں۔ ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں، جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کو نہیں مانتے۔ اور یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہوا ہے، کسی للو پنجو نے نہیں۔ ہاں عشق و محبت، عشق و محبت، ہاں اہل عشق جو، ہاں لو سامو۔ اور دین تصوف میں کیا ہے؟ بایزید بستامی کہتا ہے لوائی اعظم من لوائی محمد۔ پھر اس پر اس نے اکتفا نہیں کیا، اس نے کہا کہ محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، قیامت والے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور کون نقل کر رہا ہے؟ تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطار، جسے منگولوں نے، اور اس سے بڑھ کر اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لوائی اعظم من لوائی محمد کی یہی باطل تعویل کی ہے جو تذکرۃ الاولیاء میں اس نے کی ہے۔ اعلیٰ حضرت بھی نہیں بچے گا، یہ اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں بھی ڈل گیا۔ عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ اور تمہارا اعلیٰ حضرت کہتا تھا کہ بایزید کا جھنڈا رسول اللہ سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ لو سامو، محمد کے راستے کو چھوڑ کر ہم نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کے راستوں کو اندازہ لگائیے آپ۔ اور میرے بھائیوں پھر کہتے ہو کہ انسلٹ کرتے، انسلٹ تو تم کر رہے ہو نبی۔ ایمان بچانا ہے تو قرآن و حدیث اور رسول اللہ کے طریقہ پر عمل کرو، نقی عالم، پیر، بزرگ، بابوں کے طریقے پر، کیونکہ رسول اللہ کا طریقہ ہی سنت ہے۔ رسول اللہ کا طریقہ قرآن و حدیث میں ہے، نہ کہ بزرگوں کے بے بنیاد کتابوں میں۔ اور رسول اللہ کا طریقہ اپنانے والا ہی کامیاب ہے۔ جو رسول اللہ اور خلفائے راشدین سے ثابت ہی نہیں ہے، وہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ثابت ہے تو قرآن و حدیث سے دلیل اور حوالہ پیش کرو اگر تم سچے ہو، ورنہ رسول اللہ سے محبت ہے تو دین میں ملاوٹ، بدعت اور خرافات سے توبہ کرو۔ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، دودھ کا دودھ، پانے کا پانے صاف ہو جائے گا۔ پھر آگے بات کرتے ہیں۔ آج بڑی 11ویں شریف ہے بغداد شریف میں، اور ہم انشاءاللہ وہاں روانگی کے لیے تیار ہیں۔ کئی اسلامی بھائیوں نے نئے کپڑے پہنے ہیں، خوشبو لگائی ہے، اچھی نیتیں کی ہیں۔ انشاءاللہ دربار غوث میں جا کر عرض کرنا ہے، جو دور سے عرض کرتے تھے کہ جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ انشاءاللہ آج غوث پاک کے در پر جا کر جھولی بھر کے آنا ہے۔ انشاءاللہ ان سے عرض کرنا ہے، کیونکہ ان کے مرید ہے نا، کہ میری لاج رکھ لو یا غوث میں مرید ہوں تمہارا، میری لاج رکھ لو یا غوث میں مرید ہوں تمہارا، میں مرید ہوں تمہارا۔ غوث پاک آپ نے اپنے در پر آنے والوں کو سب کو نوازا، یہ دور دور سے آپ کے فقیر، آپ کے مرید، آپ سے محبت کرنے والے آئے ہیں۔ آج آپ کے عرس کی رات ہے، کسی خالی نہ لوٹائیے، سب کی جھولیاں بھر دیجیے۔ ماں ہماں محتاج تو حاجت روا، ماں ہماں محتاج تو حاجت روا، المدد یا غوث اعظم سیدہ۔ یا اللہ بروز قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا، یا غوث اعظم آج آپ کے عرس کی رات ہے، آپ کے مرید، آپ کے فقیر دور سے آئے ہیں۔ آپ ہی کا فرمان ہے کہ نیک مرید میرے لیے اور میں گناہگاروں کے لیے ہوں۔ غوث پاک آپ کے گناہگار مرید
वीडियो दिखाने के बाद उम्मीद है सच्चाई समझ में आ गया होगा कि यूं कि हक आ गया और बातिल मिट गया। हक आए है बातिल को मिटाने के लिए। ये अल्लाह रसूल अल्लाह और कुरान और हदीस का खुल्लम खुल्ला इनकार है। जबकि सूरह 17 आयत नंबर 56 में अल्लाह फरमाता है, इनसे कहो पुकार देखो उन माबूदों को जिनको तुम अल्लाह के सिवा अपना कारसाज समझते हो, वो किसी तकलीफ को न हटा सकते हैं न बदल सकते हैं। फिर भी लोग एक अल्लाह को छोड़कर बाकी अपने सारे पीर बुजुर्ग बाबू कब्रों और मजारों से ही मानते हैं। इन बरेलवी कब्रेलवियों को फौतशुदा पीर बुजुर्ग बाबों पर तो कुरान के खिलाफ यकीन है, लेकिन जो हमेशा से है और हमेशा जिंदा रहने वाला अल्लाह पर थोड़ा सा भी राय के दाना बराबर भी यकीन नहीं है। जबकि अल्लाह का कलाम कुरान के आयतों का इनकार करने वाला ईमान से खारिज हो जाता है, मुसलमान ही नहीं है। अपनी जेब और तोंद दोनों भरने और अपने स्वार्थ के लिए आलिम उलमा लोगों को कुरान का माना पढ़ने नहीं देते हैं, मना करते हैं कि कुरान का माना पढ़ने वाला गुमराह हो जाता है। जबकि कुरान में अल्लाह 3 जगह फरमाता है कोई कुरान पढ़ने वाला जो याद दहानी नसीहत समझने के लिए आसान है, लेकिन इन्हें तो कुरान में खोंट निकालने की आदत है। क्योंकि फौतशुदा पीर बुजुर्ग बाबों के आगे अल्लाह कुरान और रसूलुल्लाह की बात मानना ही नहीं है, क्योंकि जेब और तोंद दोनों भरने का धंधा बंद हो जाएगा, जिसे वो होने नहीं देंगे, चाहे अल्लाह रसूलुल्लाह और कुरान का इनकार ही क्यों न करना पड़े। जिंदगी आपकी है और मर्जी भी आपकी है। मैंने कुरान और हदीस खोल खोल कर बता दिया है। मर्जी आपकी, मानो या इनकारी बनकर जहन्नम और जहन्नम के आग को पसंद करो। कुरान मजीद सूरह 17 बनी इस्राइल आयत नंबर 56 में अल्लाह फरमाता है, इनसे कहो पुकार देखो उन माबूदों को जिनको तुम अल्लाह के सिवा अपना कारसाज समझते हो, वो किसी तकलीफ को न हटा सकते हैं न बदल सकते हैं। वह कौन लोग हैं जो अल्लाह कुरान मजीद और कुरान और हदीस और रसूलुल्लाह का खुलेआम इनकार करते हैं, जो कुरान में नाजिल अल्लाह के हुक्म को डंके के चोट पर इनकार करते हैं, नहीं मानते हैं। सूरह मोमिन आयत नंबर 60 में अल्लाह फरमाता है, तुम मुझसे मांगो, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार दुआ को कबूल करूंगा। जो लोग मुझसे मांगने से घमंड करते हैं, जलीलो खार होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। अल्लाह फरमाता है मुझसे मांगो, लेकिन बरेलवी रजाए मजहब के उल्मा पीर बुजुर्ग बाबे कहते हैं कुरान हदीस अल्लाह और रसूलुल्लाह को छोड़ो, कब्र मजार पीर बुजुर्ग बाबों से मांगो, मजार और पीर बुजुर्ग बाबे देंगे। ऐ लोगों, अगर तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो अल्लाह की तरफ से कोई ऐसी किताब लाओ जो इन दोनों कुरान और तौरात से ज्यादा हिदायत देने वाली हो। अगर तुम सच्चे हो तो मैं उसी की पैरवी इख्तियार करूंगा। किसी भी आलिम पीर या बुजुर्ग की बात कुरान और सही हदीस में खुद देखे बगैर न माने और नहीं उस पर अमल करें। तिरमिजी शरीफ हदीस नंबर 3372 में रसूल अल्लाह ने फरमाया, दुआ ही इबादत है। फिर सूरह 40 मोमिन की आयत नंबर 60 पढ़ा और कहा, तुम्हारा रब फरमाता है तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार दुआ को कबूल करूंगा। जो लोग मुझसे मांगने से घमंड करते हैं वे लोग जहन्नुम में जलीलो ख्वार होकर दाखिल होंगे। पूरे कुरान मजीद में अल्लाह ने एक बार भी कहीं नहीं कहा है कि गायब में दुआ और मदद एक अल्लाह के सिवा किसी और से मांगो, और रसूल अल्लाह और सहाबा ने भी दुआ और मदद अल्लाह के सिवा किसी से नहीं मांगा है। अल्लाह के सिवा कब्र मजार पीर बुजुर्ग बाबों से वही लोग मांगते हैं जिन्हें अल्लाह और रसूल अल्लाह पर यकीन नहीं है। याद रखो, शिर्क की माफी नहीं है। शिर्क करने वाले हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में जाएंगे। बुखारी हदीस नंबर 7460 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा कुरान और हदीस पर कायम रहेंगे। उसे झुठलाने वाले और मुखालिफ कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, यहाँ तक कि क़यामत कायम हो जाएगी और वे उसी हाल में होंगे, यानी कुरान और हदीस पर कायम रहेंगे। आइए इस हदीस पर थोड़ा सा तबशीरा करके गहराई से समझते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा कुरान और हदीस पर कायम रहेंगे और उन्हें झुठलाने वाले और मुखालिफ कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, यहाँ तक कि क़यामत कायम हो जाएगी। इस हदीस से पता चला कि कुरान और हदीस पर चलने और अमल करने वाला ही सीधा रास्ता पर है और वही रसूलुल्लाह के सुन्नत तरीके पर है, न कि वह जो अपने फिरके के उल्मा पीर बुजुर्ग बाबों के तरीकों और उनके लिखे मनगढ़ंत मिलावटी बेबुनियाद किताबों पर चलते और अमल करते हैं।
याद रखो और जहन में बैठा लो जो बगैर कुरान और हदीस देखे अपने उल्मा पीर बुजुर्ग बाबों के तरीकों पर चलता है, वह कुरान और हदीस के मुताबिक सिराते मुस्तकीम सीधा रास्ता पर नहीं है और न ही अहले सुन्नत है। लेकिन हाँ, अहले सुन्नत तो नहीं है लेकिन अहले बिदअत जरूर है। और इस्लाम मुसलमान कुरान और हदीस नबी और नबी का सबसे बड़ा दुश्मन जरूर है, क्योंकि कुरान और हदीस और रसूलुल्लाह के सुन्नत तरीके को छोड़कर अपने उल्मा पीर बुजुर्ग बाबों के किताबों और तरीकों पर चलते और अमल करते हैं। जैसे रसूलुल्लाह और खुलफे राशिदीन ने तीजा 10वां 20वां 40वां और बरसी नहीं किया है। अजान और अकामत से पहले दरूदो सलाम नहीं पढ़ते थे, बल्कि अजान के बाद दरूद इब्राहिमी और अल वसीला वाली दुआ पढ़ते थे। नबी का नाम आने पर अंगूठा नहीं चूमते थे, बल्कि दरूद शरीफ पढ़ते थे। कुरान और हदीस रसूलुल्लाह और खुलफे राशिदीन के तरीकों के जस्ट उल्टा चलने वाले ये कौन लोग हैं? आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं और सब कुछ जानते हुए कुरान और हदीस और रसूलुल्लाह के दुश्मनों के पीछे चल रहे हो। जैसे आगे का एक भेंडी कुआं में गिरता है तो उसके पीछे सारे भेंडी कुआं में चले जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है और सोचने समझने के लिए बेहतरीन दिमाग जहान दिया है। फिर सिर्फ जज्बात में बगैर कुरान और हदीस के दलील और हवाला के बिदअती उल्मा पीर बुजुर्ग बाबों के तरीकों और मंगलंत मिलावटी बेबुनियाद किताबों पर क्यों चलते और अमल करते हो, और साथ ही अपनी जानों को जहन्नम और आग में डाल रहे हो। मेरी बातें आज आपको कड़वी और बुरा लगेगा, लेकिन मैं कुरान और हदीस की रोशनी में बिल्कुल सही सच और हक बात बोल रहा हूँ, जो क़यामत के दिन आप सबों को समझ में आएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि जज्बाती मत बनो, बल्कि कुरान और हदीस खुद पढ़कर समझकर दलील और हवालों के साथ अमल करो। पूरे कुरान मजीद में अल्लाह ने एक बार भी कहीं नहीं कहा है कि गायब में दुआ और मदद एक अल्लाह के सिवा किसी और से मांगो, और रसूलुल्लाह और सहाबा ने भी दुआ और मदद अल्लाह के सिवा किसी से नहीं मांगा है। अल्लाह के सिवा कब्र मजार पीर बुजुर्ग बाबों से वही लोग मांगते हैं जिन्हें अल्लाह और रसूलुल्लाह पर यकीन नहीं है। याद रखो, सिर्फ की माफी नहीं है, सिर्फ करने वाले हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाएंगे। जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है कि कब मौत आ जाएगी, और मौत के बाद फिरकों और जज्बात के वजह से कल क़यामत के दिन पछताना न पड़ जाए। इसलिए अपने फिरके के उल्मा पीर बुजुर्ग बाबों को छोड़कर कुरान और हदीस और रसूलुल्लाह का दामन थाम लो। इसी में हमारी आपकी सबकी भलाई है। ऐ लोगों, अगर तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो उल्मा पीर बुजुर्ग बाबों की मनगढ़ंत बात कुरान और सही हदीस में खुद देखे बगैर न माने और नहीं उस पर अमल करें। व आखिरुज दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज।